Hello students. So today we'll continue the same unit number 2, elements of cost, material and labor. In my previous video already I have discussed about this labor cost, that is accounting and control of labor cost. Already I have discussed in my previous video. So today I am going to discuss that is the timekeeping, time booking, concept and treatment of idle time, overtime. Okay, up to this much today I am going to discuss. So first of all, see what I have discussed in my previous video, that is the meaning of labor, then types of labor, that is direct labor, indirect labor, then labor cost. Then labor cost includes like monetary benefits, fringe or labor related cost, then control of labor cost. And these 5 departments are, that is the personnel department, engineering department, timekeeping department, payroll department, cost accounting department. Up to this much I've given explanation, that is in my previous video, right? So today I'm going to discuss, that is time recording, okay, timekeeping, okay, all these things today I'm going to discuss. So first of all, you try to understand the meaning of time recording कि time recording होता क्या है. तो noting of time of workers arrival, working and departure is time recording. कहने का मतलब क्या है, वर्कर का आने का समय, जाने का समय, कितना देर वो काम कर रहा है, ये सारे समय को रिकॉर्ड करने को कहा जाता है क्या, टाइम रिकॉर्डिंग. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज टाइम रिकॉर्डिंग कैन आइदर बी, दैट इज टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग. तो देखो टाइम रिकॉर्डिंग जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप का हो सकता है, एक टाइम कीपिंग और दूसरा है टाइम बुकिंग. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम कीपिंग. ओके, तो टाइम कीपिंग होता क्या है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज नॉन एज टाइम कीपिंग. इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द अटेंडेंस time of workers for the purpose of attendance and wage calculation. In short, timekeeping refers to to recording the attendance time of workers. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, टाइम कीपिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वर्कर कितना बजे आया और कितना बजे गया, जब इसे हम रिकॉर्ड कर लेता है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, टाइम कीपिंग. ठीक है, एंट्री और एग्जिट का जो टाइम है उसे जब हम रिकॉर्ड कर लेते तो उसे क्या बोला जाता है, टाइम कीपिंग. ठीक है, जैसे मानो एक वर्कर 10 बजे आया और 6 बजे चला जाता है, अगर हम इसे रिकॉर्ड करता है तो उसे कहा जाता है टाइम कीपिंग. एक्चुअली दैट इज बेसिकली एक क्या है, अटेंडेंस शीट है. टाइम कीपिंग क्या है, अटेंडेंस शीट है. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम of workers entry and exit is known as what, timekeeping. Okay, now next is see the methods of timekeeping. अभी timekeeping का methods भी है, ठीक है. तो there are 2 methods of timekeeping. First of all, manual methods, and then second one is mechanical methods. Okay, first of all, try to understand the meaning of this manual methods. So under this method, the attendance time of workers is recorded either by the timekeeping officer or by the employees themselves. कहने का मतलब क्या है, ये जो अटेंडेंस टाइम है वर्कर्स का, इसके जब रिकॉर्ड किया जाता है, या तो ये टाइम कीपिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा या तो एम्प्लॉय खुद ही रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, अगेन मैनुअल मेथड्स आर फर्दर डिवाइडेड, दैट इज अटेंडेंस रजिस्टर मेथड एंड डिश और टोकन मेथड. ठीक है, तो मैनुअल मेथड जो है वो इसको फिर फर्दर 2 मेथड्स में डिवाइड किया गया है, एक है अटेंडेंस रजिस्टर मेथड और दूसरा है डिश और टोकन मेथड. तो ये अटेंडेंस रजिस्टर मेथड क्या है, तो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, यू रिमेंबर, मास्टर रोल. क्या बोला मैंने, MUSTR, मास्टर रोल. इसे मास्टर रोल भी बोला जाता है. ओके, नाउ अंडर दिस अटेंडेंस रजिस्टर मेथड, an attendance register is maintained for recording the attendance time. Okay, and it is usually kept at the time office, generally located at the factory gate or in each department where workers are working. And in the register there are 2 separate columns, one for in and another for out.
corresponding the names of each employee. Okay, and when a worker arrives at the gate, he or the timekeeper records the time. Where? Which column? In column. And when he goes out after the day's work, he records the departure time. In which column? Out column. Okay, so this attendance register method is the oldest method of timekeeping. Okay, so this is about that is the attendance register method. Next one is dish or token method. So under this dish or token method, a separate metal dish is allotted to whom? To the worker. Okay, and the metal dish bearing the identification number of an employee, and this metal dish or token are placed on the hooks. Where? On the hooks on a board. Okay, kept at the factory gate or at the department entrance. Okay, and whenever a worker enters into the factory gate, he has to take the token bearing his identification number and put it into a box kept for the purpose. And after a short while of the scheduled time of the factory, the original box is removed, and in its place a letter box, letter box is kept. The purpose is to know latecomers. What I said? Latecomers. Okay. Again, the letter box is also removed at the end of the maximum time allowed. And now the dish or token is still left at the board represent the absent workers. Okay, so this is about what? Dish or token method. Next you see here, students, mechanical methods. Okay, mechanical methods. The mechanical methods, this method that are generally used for the recording of time of workers may be as follows. So there are two methods. One is time recording clock, another one is dial time records. Okay, so what is that? Time recording clock. The time recording clock, that is the time recording clock, is a actually mechanical device which automatically records the time of the workers, and each worker is given a time card, usually of 1 week duration. Okay, and these time cards are serially arranged in a tray near the factory gate, and as the workers enters the gate, he picks up his card from the tray and puts it in the time recording clock, which prints the exact time of arrival in the proper space against the particular day. And this process is repeated for recording time of departure for lunch, return from lunch, and time of leaving the factory in the evening. Okay, and that is the late arrivals, early leavings, and overtime are printed in red to attract the attention of the management. Okay, now next one is, that is dial time records. So dial time records, that is the recorder has a dial around. What I said? Dial around, which there are a number of holes. What I said? Number of holes, and each hole representing a number which corresponds to the ticket number of the worker. And inside the recorder there is a roll of paper. What I said? Roll of paper. Okay,
and as a worker enters, he presses the dial arm into the respective hole, and his attendance is recorded automatically on the roll of paper against his ticket number. Okay, so this is about what? This is about dial time records. Okay, now next point, see what is that given. That is next point is given, that is टाइम बुकिंग. अभी टाइम बुकिंग क्या है? टाइम कीपिंग तो समझ में आ गया, अभी टाइम बुकिंग क्या होता है. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. टाइम बुकिंग, इन एडिशन टू रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू रिकॉर्ड द टाइम स्पेंट बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स. ठीक है, ये तो रिकॉर्ड करना ही है कि एक वर्कर कितना बजे आया, कितना बजे गया, वो तो रिकॉर्ड करना ही है. प्लस ये भी जरूरी है रिकॉर्ड करना कि एक वर्कर किस काम में, प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगाया, किस प्रोडक्ट में कितना समय लगाया, उसको भी रिकॉर्ड करना है. इस जिसे क्या बोला जाता है? टाइम बुकिंग. ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम spent by workers on different jobs carried out by him during his period of attendance in the factory is called what? Time booking. So in short, time booking is concerned with recording of work time of a what? Worker. Okay? तो कहने का मतलब क्या था मेरा, कि एक वर्कर किस काम पे कितना समय दे रहा है, ठीक है, उसको नोट करना कहा जाता है क्या? टाइम बुकिंग. दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बाय वर्कर इन डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम बुकिंग. नाउ यू सी हियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेथड्स ऑफ बुक, दैट इज मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग. ओके, तो टाइम बुकिंग का भी दो मेथड्स हैं. ओके, दैट इज डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड. दैट इज व्हाट? दिस three are also documents that are generally used for time booking. Okay, तो एक होता है क्या? That is तुम्हारा डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट और जॉब कार्ड. तो डेली टाइम शीट, that is this sheet is a, that is this daily time sheet is a daily record of the work done by a worker on different jobs. ठीक है. And next point is weekly timesheet. So this weekly timesheet also records the same particulars for a week as the daily timesheet for a what? Day. Okay. Then next is job card, right? Job card given. So job card, that is a job card is used to keep a close watch on the time spent by a worker on each job, so that the labor cost of a job may be conventionally ascertained. Okay, so this is about job card. Next is given, what is that? Time study. अभी ये टाइम स्टडी क्या होता है, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइम स्टडी. तो टाइम स्टडी refers to the procedure of fixing standard time for performing a work or operation. The main object of time study is to determine the proper time required to complete the job. Okay, that means in shortcut, if I say, that is time study help us to know the average time required by a worker to complete work. Okay, that means suppose जैसे मान लो एक वर्कर काम को करने में 6 आवर्स लगाता है. एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? 6 आवर्स. कोई वर्कर ऐसा भी है कि 7 आवर्स लगाता है, कोई वर्कर्स ऐसा भी है कि 8 आवर्स लगाता है. ठीक है ना. तो हमने ये देखने का कोशिश किया, हम ये जानने का कोशिश किया कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज क्या बोला मैंने? जैसे मान लो कि वर्कर, जैसे मान लो 4 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया कोई वर्कर 6 आवर्स में काम को कंप्लीट कर दिया, कोई वर्कर 8 आवर्स में काम को कंप्लीट कर दिया, है ना. नहीं है. तो हम ये जानने का कोशिश किया कि ऑन एन एवरेज
एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको कंप्लीट करने में 6 आवर्स लग जाता है ऑन एन एवरेज। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टाइम स्टडी। इस स्टडी को बोला जाता है टाइम स्टडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन टाइम एंड मोशन स्टडी। रिमेंबर स्टूडेंट, टाइम स्टडी इज डिफरेंट एंड टाइम एंड मोशन स्टडी इज डिफरेंट, ओके। तो टाइम एंड मोशन स्टडी मीन्स व्हाट? दिस स्टडी eliminates unnecessary time involved and help us to know the exact time required for a work. It gives us standard time to complete a given task. Okay? इसका मतलब है क्या? जैसा मान लो कि देखो जो वर्कर है वो मान लो ऑल टोटल प्रोडक्ट जो कंप्लीट करता है, जो गिवन टैक्स दिया जाता है, वो काम कंप्लीट करने में मान लो वो 8 आवर्स लगाता है। एक काम को कंप्लीट करने में कितना आवर्स लगाता है? 8 आवर्स लगाता है, ठीक है। मैंने ये स्टडी करने का कोशिश किया कि मैंने देखने का कोशिश किया कि वो 8 घंटा जो काम किया कंप्लीट किया, एक काम को कंप्लीट करने में उसने जो 8 घंटा लगाया, एक्चुअली उसने उस काम को कंप्लीट करने में कितना आवर्स लगाया। कहने का मतलब है कि हो सकता है ये 8 घंटा में वो थोड़ा 3-4 बार चाय पी लिया, ठीक है ना। क्या पी लिया? चाय पी लिया, ठीक है। उसने लंच ब्रेक भी लिया होगा ये 8 घंटा में, है ना, नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा बाहर में फैक्ट्री का बाहर में भी क्या है, जैसे मान लो कुछ है ऐसे टहलने के लिए, घूमने के लिए, वो थोड़ा बाहर का हवा खाने भी चला गया, ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये सब टाइम खराब हो रहा है ना, नहीं। आप तो इसमें क्या कर रहे हो? काम तो नहीं कर रहे हो, आप तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, है ना, नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने देखा कि आपने टी ब्रेक लिया, 3-4 बार चाय पी लिया, फिर आपने लंच ब्रेक लिया, फिर आपने बाहर गया, थोड़ा घूमा, ठीक है ना, फिर थोड़ा अंगड़ाई लिया, जिसे फैटिक बोला जाता है। हाथ एक बार पीछे एक बार आगे ऐसा थोड़ा अंगड़ाई लेता है ना, जो फैटिक बोला जाता है जिसे। तो ये सब ऑल टोटल मैंने देखा आपने 2 आवर्स लगाया इसमें, ठीक है। आप 2 आवर्स को टाइम को खराब किया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल जो टाइम लिया है वो कितना आवर्स लिया है? 6 आवर्स लिया है, ठीक है ना। इस स्टडी को बोला जाता है टाइम एंड मोशन स्टडी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन। अब ये जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? तो जॉब इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ ए जॉब, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग, बेसिकली दिस टू आर रिलेटेड व्हाट? कंपेंसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो जॉब इवैल्यूएशन क्या बोला मैंने? इट इज ए सिस्टमेटिक टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ ए जॉब, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसा मान लो कि मैंने सपोज मुझे सीए को रखना है। जैसा मान लो अगर सीए वाला आता है, तो सीए वाला अगर आता है तो उसको कितना सैलरी देना है, तो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि इसे 60,000 देना है, ठीक है। कोई सपोज सीएमए वाला अगर आता है तो उसे कितना सैलरी देना है, तो मैंने डिसाइड करके रखा है कि इसे 50,000 देना है, ठीक है। या कोई एमबीए वाला अगर आने वाला है, ठीक है, तो वो उसको कितना दिया जाए, तो मैंने डिसाइड किया उसको 30,000 दिया जाए, ठीक है ना। ये पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है, पहले से डिसाइडेड होता है। हर एक जॉब के लिए जो सैलरी, जो कंपेंसेशन है, ये जो डिसाइडेड पहले से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कैंडिडेट आया, आप उसका इंटरव्यू लिया, इसके बाद आपने डिसाइड किया कि इसको सैलरी कितना देना है, ऐसा नहीं होता है। आप पहले से ही कुछ ना कुछ मन में बैठा के रखते हैं कि हमको इतना सैलरी देना है। अगर सीए वाला आया तो 60,000 देगा, सीएमए वाला आया तो 50,000 देगा, एमबीए वाला आया तो 30,000 देगा, ठीक है ना। ओके, तो इस इवैल्यूएशन को क्या बोला जाता है? जॉब इवैल्यूएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉब इवैल्यूएशन। दैट मीन्स job evaluation is a procedure designed to rank job on a formal basis and to measure the worth of job for compensation purpose. Okay, next is merit rating. Merit rating refers to evaluation of the individual merits of the employees. It means the evaluation of the merits of the workers and their classification on that basis. जैसे मान लो स्टूडेंट्स कि देखो जैसे मानो
कि आपने सोचा कि सीए वाला को कितना आप देगा, 60,000 देगा, ये आप मन में पहले से बैठा के रखें। लेकिन जब आप इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू देने के लिए सीए वाला आया, आपने जब कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया तो लेने के बाद आपने देखा कि ये जो सीए है ये दो तीन सीए का बराबर है, मतलब इतना एक्सपर्ट है, ठीक है। आपका जो एक्सपेक्टेशन था सीए का ऊपर उससे भी ज़्यादा ही निकल गया, ठीक है। तो आपने सोचा कि इसको 50,000 नहीं 60,000 देना चाहिए, ठीक है। सॉरी 60,000 आपने डिसाइड किया था, तो इससे अभी 70,000 देना चाहिए। कितना देना चाहिए, आपने जितना सोचा था उससे आप ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये 2-3 सीए का बराबर काम कर सकता है, ठीक है, इतना टैलेंटेड है। और एक सीए वाला को आपने फिर से रखा और वो ऑन एंड एवरेज, मतलब एवरेज जो होता है ना, एवरेज से भी कम है, ठीक है। तो जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है, बिलो एवरेज होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होता है नहीं होता है, तो बिलो एवरेज है। तो ऐसा सीए वाला को रख दिया मैंने, और इसको मैंने डिसाइड किया कि 10,000 हम देगा, इसको डिसाइड किया, ठीक है। तो ऐसा जो इवैल्यूएशन, ऐसा जो किया जाता है जब, तो इसे क्या बोला जाता है, मेरिट रेटिंग बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, मेरिट रेटिंग इज कंसर्न with evaluation of an individual employee based on his performance for compensation purpose, ठीक है। Next is ideal time. Now ideal time, try to understand, okay. Ideal time is that time for which the employer pay, okay. एम्प्लॉयर ने उस टाइम के लिए पेमेंट तो किया वर्कर को, बट फ्रॉम विच ही ऑब्टेन्स नो प्रोडक्शन, लेकिन जो पेमेंट किया, ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने वर्कर को उस टाइम के लिए पेमेंट किया जिस टाइम में वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, उसे क्या बोला जाता है, आइडियल टाइम। आइडियल टाइम दैट मीन्स टाइम फॉर विच पेमेंट इज मेड बाय एन एम्प्लॉयर और एंटिटी बट नो वर्क इज अचीव, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, आइडियल टाइम। जैसा मान लो, मैंने जैसा पहले एग्जांपल दिया था कि आप जो ब्रेक लेते हो, ठीक है ना, आप जो ब्रेक लेते हो, जैसे लंच ब्रेक हो गया, राइट, लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, आप कभी कभी अंगड़ाई लेते हो, फैटिग जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, अंगड़ाई लेते हो, आप थोड़ा घूमने के लिए चले जाते हो, है ना, नहीं। तो ये जो समय जो खराब हो रहा है, ठीक है ना, आप जब फैक्ट्री में एंट्री करते हो तो आप सबसे हाथ मिलाते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, है ना, नहीं, तो इसमें भी समय खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो आपको तो लंच ब्रेक भी, आपने लंच ब्रेक भी लेना है, टी भी लेना है, कभी कभी अंगड़ाई भी लेना है। तो क्या ये मैनेजमेंट एंटिटी क्या इसे रोक पाएगा? आप इसे रोक पाओगे? बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। आप चाहते हुए भी इसे रोक नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या आप सैलरी काट लोगे कि देखो तुमने लंच ब्रेक हाफ आवर ले लिया, आधा घंटा आपने लंच ब्रेक लिया, आपने टी के लिए 10 मिनट ले लिया, आपने अंगड़ाई लिया 5 मिनट, आपने थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए चला गया और उसमें 15 मिनट्स लगा दिया आपने। तो ये जो समय आपने ख़राब किया, इसके लिए आपका सैलरी काट दिया जाएगा। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है, ये तो होगा ही, है ना, नहीं। तो ये जो समय खराब होता है ना, इसे क्या बोला जाता है? आइडल टाइम। क्योंकि ये जो समय खराब हो रहा है, इसके लिए ये समय खराब तो किया, लेकिन किया इसके लिए सैलरी काटा नहीं काटा, फिर भी पेमेंट किया, है ना, नहीं। इसी तरह और क्या होता है, जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है ना, मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, ये भी तो समय खराब कर रहा है, आपका प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, कि इसके लिए आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, है ना, नहीं। तो इसे क्या बोला जाता है? आइडियल टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू सी, आइडियल टाइम आर 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम, अनदर वन इज एबनॉर्मल आइडियल टाइम। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि नॉर्मल आइडियल टाइम और एबनॉर्मल आइडियल टाइम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दिया था, तो वहाँ में से ही एक नॉर्मल आइडियल टाइम है और एक एबनॉर्मल आइडियल टाइम है। नॉर्मल आइडियल टाइम मीन्स व्हाट? दोज आइडियल टाइम व्हिच आर generally unavoidable by management. Example like tea break, lunch break, fatigue, है ना? These are called what? These are called normal ideal time. And what is mean by abnormal ideal time? So those ideal time which can be avoided by management.
with proper control and due care. Example like breakdown of machine. अभी देखो मशीन प्रोडक्शन करते करते, काम करते करते, प्रोडक्शन करते करते मशीन खराब हो गया, तो इससे क्या वर्कर का गलती है? इससे काम रोक गया, आपका प्रोडक्शन रोक गया, तो ये गलती किसका है? मैनेजमेंट का गलती है। वो टाइम पे रिपेयरिंग नहीं कराता होगा, सर्विसिंग नहीं कराता होगा, इस वजह से मशीन खराब हो गया, आपका प्रोडक्शन रोक गया। तो क्या इसके लिए आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। क्या ये आपका कोई गलती नहीं है, वर्कर का कोई गलती नहीं है, यहाँ में गलती किसका है? मैनेजमेंट का है। ठीक है। इसी तरह रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, तो इससे क्या वर्कर का कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है, वर्कर का गलती नहीं है। रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, काम बंद हो गया, प्रोडक्शन रोक गया, है ना? नहीं है। ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल आइडल टाइम बोला जाता है। स्टूडेंट, नॉर्मल आइडल टाइम कुछ और भी होता है, जैसे एग्जांपल लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर, आग लग गया, तो दोज आइडल टाइम व्हिच कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। ये कौन सा आइडल टाइम है? जो कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। एकमात्र कौन रोक पाएगा? भगवान। अर्थक्वेक, फ्लड, फायर। ठीक है। अभी जैसा मान लो तुम कोई प्रोडक्शन कर रहा है, मशीन में कोई सामान बना रहा है, बनाते बनाते अर्थक्वेक आ गया, अभी बहुत ज़्यादा जोर से हिलना शुरू हो गया, तो क्या प्रोडक्शन कर पाओगे? क्या मालिक आके आपको बोलेगा नहीं तुम प्रोडक्शन करते रहो, अर्थक्वेक चलने दो, तुम करते रहो, आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना? नहीं। तो इसे क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर टाइम। ओवर टाइम होता क्या है? यूजुअली द वर्कर्स आर सपोज टू वर्क फॉर गिवन टाइम पर डे और पर वीक, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल वर्क पीरियड। Whereas overtime is the work done beyond the normal work period. That means what? If the workers works beyond normal work period or normal time, it is known as what? It is known as overtime. Generally, normal time of worker is 8 hours per day. देखो जो फैक्ट्री एक्ट बनाया गया है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट बनाया गया है जिसमें ये बोला गया है कि जनरली जो वर्कर का जो काम करने का जो टाइम है टोटल वो 8 आवर्स है पर डे। एक दिन में कितना घंटा काम कर पाएगा? 8 आवर्स। ठीक है। जिसे बोला जाता है नॉर्मल टाइम या नॉर्मल वर्क पीरियड बोला जाता है। अगर आप 8 घंटा से ज़्यादा काम कर रहे हो तो जितना ज़्यादा टाइम आपने लिया काम करने में, ठीक है ना, उसे बोला जाता है क्या? ओवर टाइम। तो आप अगर ओवर टाइम काम किया तो ओवर टाइम के लिए भी आपको पेमेंट मिलेगा। 8 घंटे का तो पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपने ओवर टाइम भी किया तो उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल है यहाँ में, दिस स्मॉल न्यूमेरिकल्स। समटाइम्स ये एग्जाम में आता है कभी कभी कि आपको बोल दिया कि टोटल वेजेस निकालो, ओवर टाइम, नॉर्मल टाइम इतना है, ओवर टाइम इतना है, इतना पेमेंट पर आवर्स इतना पेमेंट करता है, ठीक है, इतना घंटा काम किया तो आप टोटल वेजेस निकाल कर दिखाओ। ठीक है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ में एग्जांपल एक मैंने लिया, सपोज नॉर्मल टाइम 8 आवर्स। कितना आवर्स? 8 आवर्स। तो नॉर्मल टाइम आपका है 8 आवर्स और पर आवर में आप कितना करके दे रहे हो? 10 रुपीज़ करके दे हो। तो जो 8 आवर्स हो गया वो आपका हो गया नॉर्मल टाइम। ठीक है। और 10 जो है दैट इज ₹10 है ना, कितने रुपीस से? 10 रुपीज़ से। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल रेट। क्या रेट? नॉर्मल रेट हो गया। ठीक है। ये 10 रुपीज़ नॉर्मल रेट और 8 आवर्स हो गया आपका नॉर्मल टाइम। ठीक है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? आपको अगर पूछा कि उसको कितना पेमेंट मिलता होगा अगर वो 8 घंटा काम करता है और पर आवर 10 रुपीज़ करके देता होगा, तो सर आप बोलोगे कि 80 रुपीज़ देता है। करेक्ट। लेकिन उसने क्या किया? 8 घंटे तो काम किया ही किया, उसका तो 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसने 2 घंटा एक्स्ट्रा और काम किया। अगर कोई वर्कर नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करता है अगर, तो उसको नॉर्मल जो रेट होता है उससे ज़्यादा पेमेंट मिलता है उसको। एग्जाम्पल देखो यहाँ में, ओवर टाइम वो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, उसके लिए उसको पर आवर 20 रुपीज़ करके मिलेगा, लेकिन यहाँ में 10 रुपीज़ करके था। तो ये हो गया नॉर्मल टाइम और ये हो गया दैट इज नॉर्मल
ये तो नॉर्मल टाइम हो गया, ये हो गया ओवर टाइम रेट, ठीक है। ये 20 रुपीज़ क्या है, ओवर टाइम रेट है, और ये 2 आवर्स क्या है, ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम है। ये ओवर रेट हो गया और ये ओवर टाइम हो गया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया और आपको अगर 20 रुपीज़ करके देता है तो उसका हिसाब से आपको कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ में ओवर टाइम वेजेस कैलकुलेट करना है। तो ओवर टाइम वेजेस कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा, अगर फॉर्मूला लगाते हैं आप तो होगा ओवर टाइम आवर्स इंटू ओवर टाइम रेट। तो ओवर टाइम आवर्स मतलब कितना घंटा एक्स्ट्रा आपने काम किया, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिख दो, इसका साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। ओवर टाइम रेट कितना है, तो ओवर टाइम रेट है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना रुपीज़ हो गया, 40 रुपीज़, ठीक है। तो ओवर टाइम के लिए आपको कितना मिलेगा, 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस ओवर टाइम को ना स्टूडेंट अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। इससे ना ओवर टाइम जो वेजेस है, इससे ओवर टाइम प्रीमियम भी कहा जाता है। वो कैसे, वो कैसे, देखो जैसे ये हमें नॉर्मल टाइम कितना था, नॉर्मल आपका नॉर्मल रेट कितना था, 10 रुपीज़ था, ठीक है। अभी आपको कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा काम किया तो 20 रुपीज़, तो इस 20 रुपीज़ का अंदर आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़। यहाँ में 10 रुपीज़ है ना, और यहाँ में 20 रुपीज़ है, तो एक्स्ट्रा आपको और कितना मिल रहा है 20 रुपीज़ का अंदर, 10 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ को बोला जाता है प्रीमियम, ठीक है। तो ओवर टाइम प्रीमियम को किस तरह कैलकुलेट करना है, जितना आवर्स एक्स्ट्रा आपने काम किया वो वाला लिख दो, 2 आवर्स, इनटू जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम हो रहा है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 20 रुपीज़। इसे बोला जाता है ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है। अभी आपको पूछा गया है कि टोटल वेजेस फाइंड आउट करो, आपको नॉर्मल टाइम भी दे दिया, ओवर टाइम भी दे दिया, रेट भी दे दिया, आपको पूछा कि टोटल वेजेस कैलकुलेट करो, तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला इज लाइक दैट, नॉर्मल वेज प्लस ओवर टाइम वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेज का मतलब है नॉर्मल टाइम इंटू नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल टाइम कितना है, 8 आवर्स, नॉर्मल रेट नॉर्मल टाइम 8 आवर्स और नॉर्मल रेट 10 रुपीज़, तो 8 इंटू 10 80 रुपीज़ हो गया। और ओवर टाइम वेजेस तो आप यहाँ में कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 40 रुपीज़ है ना, नहीं, तो इस तरह 40 रुपीज़ आ गया, तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, 120 रुपीज़, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इस टोटल वेजेस को आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर ओवर टाइम है तो, ठीक है। जैसा यहाँ में लिखा है ना ओवर टाइम प्रीमियम, तो देखो टोटल वेजेस फिर से नॉर्मल वेज 8 इंटू 10, यहाँ में 8 इंटू 10 है, लेकिन यहाँ में देखो 10 आवर्स इंटू ₹10 है। कहने का मतलब है नॉर्मल टाइम कितना है, 8 आवर्स, ठीक है। आप एक्स्ट्रा कितना टाइम और लिया, 2 आवर्स, तो टोटल आपने कितना टाइम लिया एक काम को कंप्लीट करने में, 10 आवर्स, तो आप यहाँ में 10 आवर्स लिख दो, ठीक है। और टोटल आपका नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, 10 रुपीज़, आप यहाँ में लिख दो, टोटल कितना हो गया, 10 इंटू 10 100 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ में जो है ये ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम प्रीमियम मतलब ये वाला, तो कितना रुपीज़ आ गया यहाँ में, 2 इंटू 10 तो हो गया 20, तो इसका मतलब ऑल टोटल कितना हो गया आपका 120 रुपीज़, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ में आप इस तरह कैलकुलेट करो चाहे इस तरह कैलकुलेट करो, आंसर दोनों का एक ही आ रहा है ना, नहीं। तो इस तरह ओवर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है या टोटल वेजेस इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।